22 বছর আগে সংসদের হামলার স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে আজকের বুধবারের এই ঘটনা। এর আগে 2001 সালে এই 13ই ডিসেম্বরেই সংসদে জঙ্গি হামলা হয়েছিল। আজ লোকসভার গ্যালারি থেকে চেম্বারের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই যুবক। এই ঘটনায় সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ওই দুই যুবক লোকসভায় ঢুকে রংবোমা ছোড়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাদেরকে আটক করা হয়েছে। বুধবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলছিল। সভায় ওই সময় মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আচমকা দেখা যায় দুই যুবক সবার মাঝখানে লাফিয়ে পড়েন। বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ান তারা। সাংসদরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা হলুদ রঙের গ্যাস জাতীয় পদার্থ সভায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিলেন তারা। সেগুলিকে রং বোমা বলে দাবি করা হচ্ছে। গ্যাস দেখে সবাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই ধোঁয়া বিষাক্ত হতে পারে, সেই আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে পড়েন সাংসদরা। হামলাকারীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। দুই সাংসদ দ্রুত তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে তুলে দেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও হামলাকারীদের স্লোগান দিতে দিতে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কী স্লোগান দিচ্ছিল এই হামলাকারীরা? তানাশাহি নেই চলেগা। এই স্লোগান দিতে দিতে লোকসভার গ্যালারি থেকে লাফিয়ে পড়ছিল তারা দুজন। জানা গেল তাদের পরিচয়। একজনের নাম অমল শিন্ডে, তার বাড়ি মহারাষ্ট্রে। অন্যজনের নাম নিরাম সিংহ, তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা বলে খবর। দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন সাগর শর্মা নামে আরও একজন। তিনি পুরো ঘটনার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, সাগর একটি ভিজিটর পাস জোগাড় করেন বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিনহার অতিথি বলে। তার সঙ্গে আরও একজন মহিলা সংসদে ঢোকার চেষ্টা করেন। এই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি চিদম্বরম জানান, তিনি প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন দর্শক গ্যালারি থেকে কেউ পড়ে গিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফ দেওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারেন নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে কেউ ঢুকে পড়েছে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, দুই যুবক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারা এমন কিছু একটি ছুটছিলেন যা থেকে গ্যাস নির্গত হচ্ছিল। আমাদের দুই সাংসদের হাতে তারা ধরা পড়েন। পরে নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের বার করে নিয়ে যান। অন্যদিকে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে হলুদ ধোঁয়া নির্গত ক্যান নিয়ে প্রতিবাদ করার সময় এক যুবক এবং এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, তাদের দুজনকে পরিবহন ভবনের সামনে থেকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার নিরাপত্তা গাফলতির অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন পর্যন্ত যে তথ্য মিলেছে তাতে জানা যাচ্ছে ওই দুই ব্যক্তির সঙ্গে ছিল স্মোক গ্রেনেড। বস্তুত বুধবারই সংসদে হামলার 22 বছর পূর্তি। ওই দিনই এই হামলার ফলে দুয়ের মধ্যে কোনো যোগ আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़का मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ
ऐसा हो गए. Suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs, we do not know. But it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं. तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर. Maybe they are going to blast something, or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately, all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Young people. 0 आवर्स में बोल रहे थे. मेरा भी नंबर लगभग 20 नंबर था, मुझे बोलना था. उसी के जस्ट पहले लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति कूदा. तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम हो सकता कोई गिर गया हो, बीमार रहा हो, लेकिन वो कूद करके जंप करते हुए स्पीकर की पीठ की तरफ भाग रहा था. और दूसरा वहां गिर करके हम सभी लोगों ने पकड़ने का काम किया, और उसके बाद दूसरे को भी पकड़ने का काम हम सभी लोगों ने किया. और आप भी गए मैं खुद था, और हमें सभी सांसद थे. और अपने जूते से उसने कागज में लपेटा हुआ पता नहीं क्या था, और उसको निकाल करके अपने हाथ में जब जूते को लिया और जूते को दिखाने शुरू किया, हम लोगों ने सोचा जूता मारने वाला है. लेकिन उसके बाद उसी में से एक सामान निकाला, उसको पता नहीं कैसे इतना धुआं शुरू हो गया उसके अंदर, लोकसभा के अंदर, कि पूरा धुआंमय लोकसभा हो गई. और दूसरा वाला भी वही सिस्टम लागू किया, धुआं हो गया. हम सभी लोग, सभी सांसदों ने पकड़ करके और उसको ले जा करके मारते पीटते सिक्योरिटी वाले भी आ गए, और उसको ले जा करके उनके पास किया गया. और एक के पास से आधार कार्ड निकला था. उसने बताया कि मेरा आधार कार्ड फला है. उस आधार कार्ड सिक्योरिटी वालों ने लिया है. कहाँ का था? लखनऊ नाम ले रहा था, लखनऊ का रहने वाला. अब कहाँ का था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना है, बहुत निंदनीय घटना है कि गजब हिम्मत उन लोगों की हुई है कि जाकर के लोकसभा के अंदर कार्रवाई चल रही थी और इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने का काम किया. तो आप इसको सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं से चूक है सिक्योरिटी वालों का, कहीं न कहीं से चूक है कि सूच के अंदर इतनी तगड़ी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी कहां से लेकर के एक नहीं दो, अब और उसके ऊपर भी कई रहे होंगे, वो बात मैं नहीं जान पाता, लेकिन एक से दो हुआ. दोनों हवाई में धुआं निकालने का काम कर रहे थे. तो ये बहुत बड़ी घटना है. कहीं न कहीं सिक्योरिटी वालों की लापरवाही रही है. नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही. और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है. जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया. तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे. आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा. मैंने देखा एक कोई हुआ था exactly? नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से. इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया. और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं. लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी. नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा. कह नहीं सकते, स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे. वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका. सूचित कर दिया, सूचना दे दी. हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है. उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे. तो वो उचित निर्णय वो लेंगे. लोगों को ये भी फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है.